हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये PT2 एग्ज़ाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। और सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन। एक पैराग्राफ आपको गिवन है। अकबर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल रूलर्स। ही वॉज द थर्ड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। अकबर वॉज द सन ऑफ बादशाह हुमायूं एंड हामिदा बानो बेगम। हिज फुल नेम वॉज Abdul Fateh Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar was actually the title of a two. Akbar was actually the title given to him by his Hindu subject. This name was given to him as a token of honor and love of a subject for him. Like old head on young shoulders, Akbar was burdened with many responsibilities at a very early age. He was born with a silver spoon in his mouth, but after the death of his father, he had to be crowned as the king at the age of 15. He was even separated from his mother and was brought up by Maham Anga and his foster father Bairam Khan. Akbar defeated Hemu in the Second Battle of Panipat and established his control over Delhi. Akbar was a strong personality and a very noble ruler. Apart from being an able general, he was great patron of art. Many artists, artisans, scholars, and holy men of different faith adorned his court. He himself was illiterate, but held them all with high regard. Birbal, Raja Mansingh, Raja Todermal, Mullah Do Piazza, Abdul Rahim Khane Khana, Faizi, Abu Fazl, Tansen, and Fakir Aziao were the 9 gems of his court. He was also fond of literature and established a library of over 24,000 volumes of writings in Sanskrit, Hindustani, Persian, Greek, Latin, Arabic, and Kashmiri languages. Over a period of time, Akbar moved his kingdom to Agra. He extended his empire to nearby all of the Indian subcontinent north of Godavari River. He treated all his subjects equally and banned taxes levied on specific communities. Banned. He proposed a new religion called the Deen-e Ilahi. Okay. Now first question is Akbar belonged to the. अकबर किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? वो एक मुगल एम्पर थे, मुगल डायनेस्टी. अकबर बिकेम द किंग एट द एज ऑफ, वो किंग बने थे एट द एज ऑफ 15. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द 9 gems. इनमें से कौन 9 gems नहीं थे? तानसेन थे, ये 9 gems हैं. तानसेन. अबू फजल भी थे. बैरम खान नहीं थे, बैरम खान उनके फॉस्टर फादर थे. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. वॉट डिड अकबर बैन इन हिज एम्पायर. उन्होंने अपने एम्पायर में क्या बैन किया था? जो टैक्स लिवाई किया गया था स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ पर, क्योंकि वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे. सो टैक्स लिवाइड ऑन स्पेसिफिक कम्युनिटीज़. नेक्स्ट इज गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वन हु कैन नॉट रीड और राइट. एक पर्सन जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे कहते हैं इलिटरेट. वॉट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ अकबर. अकबर के फादर का क्या नाम था? बादशाह हुमायूं. अकबर डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. अकबर मूव्ड दिस हिज किंगडम टू. अकबर ने अपने किंगडम को मूव किया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. ही वॉज फॉन्ड ऑफ लिटरेचर एंड स्टैब्लिश्ड अ लाइब्रेरी ऑफ over 24,000 volumes of writings in Sanskrit, Persian, and other languages. So 24,000 volumes. What is the antonym of new? New का opposite क्या होगा? Old. Okay, now next is grammar section. Fill in the blanks using correct form of past continuous tense. Blanks को आपको fill करना है past continuous tense को use करके. Use the verb given in the bracket. Bracket में जो verbs given है उन्हें use करना है along with was और were. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर, वर्ब प्लस ing आता है. सो फिशेज ब्लैंक इन द रिवर. फिशेज वर स्विमिंग, वर स्विम की, स्विमिंग इन द रिवर. वेटर ब्लैंक नॉट ब्लैंक द फूड, सर्व. सो वेटर वॉज नॉट सर्विंग द फूड. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ब्लैंक ही ब्लैंक हिज, डू. इनकम्प्लीट है सेंटेंस. ये हो सकता था वॉज
वॉज वर हमें यूज़ करना है, प्लस वॉज ही डूइंग हिज, सपोज के बाद वर्क होता, वॉज ही डूइंग हिज वर्क. पीपल ब्लैंक इन द टेम्पल, सो पीपल वर praying in the temple. Tiger blank not blank the deer. Tiger was not chasing the deer. Okay, next. Next is in the following sentences identify the principal verb and helping verbs. Principal verb और helping verbs बतानी है कौन से sentences में. Thieves were running with the loot. तो प्रिंसिपल मेन वर्ब है यहाँ पर रन, रनिंग, ये है प्रिंसिपल वर्ब, और वर ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग. द मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली, मेन प्रिंसिपल वर्ब है कुक्स और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. कॉलेज कैन इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, इम्पार्ट करना ये प्रिंसिपल वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है कैन. प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देयर ओन, सो प्लांट्स मेक ये प्रिंसिपल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है. शी मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, फिनिश्ड ये प्रिंसिपल वर्ब है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है. ओके, नेक्स्ट. राइटिंग सेक्शन. डेवलप इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द गिवन आउटलाइंस. एक स्टोरी डेवलप करनी है. अ यंग लैम वेंट टू ईट ग्रास, एक यंग लैम था, ग्रास खाने जाता है. उसका जो ग्रुप है उससे वो सेपरेट अलग हो जाता है, वैंडर फार अवे दूर चला जाता है, घास खाने लगता है. सडनली एक वुल्फ आएगा, लाम आफ्रेड डर जाता है. एक आइडिया उसे आता है, वो वुल्फ को कहता है टू वेट टिल द ग्रास डाइजेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा घास खा लिया तो जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता तब तक वेट करो. ऐसे उसका टाइम वेस्ट करता है. स्टूपिड वुल्फ जो था वो बिलीव कर लेता है, उसके एक्सक्यूजेस को मान लेता है. शेफर्ड तभी आ जाता है इन सर्च ऑफ लाम. वुल्फ डर जाता है, वुल्फ इज स्केयर्ड अवे, वो डरा के उसे भगा देता है. लाम सेव्ड हो जाता है. एंड देन मोरल ऑफ द स्टोरी. ओके, सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. वंस अ लिटिल लैम वेंट टू ईट ग्रीन ग्रास विद फ्लॉक ऑफ शीप इन ग्रेजिंग लैंड. एज द फ्लॉक वॉज ग्रेजिंग, द लिटिल लैम वॉज वैंडरिंग हियर एंड देयर. It saw fresh grass at a distance and got separated from the flock. When the lamb realized that it lost its way and was far away from the flock, it decided to join them. However, the lamb was stunned to see a hungry and cunning wolf standing behind it. The lamb asked the wolf, "Are you going to eat me?" The wolf said, "Yes, at any cost." The lamb said again, "But can you please wait for some more time? I eat a lot of grass now, and my stomach is filled with grass. If you eat me now, you will feel like eating grass." The wolf agreed, "Oh yes, I will wait." The lamb thanked. After some time, the wolf got ready to kill lamb, but the lamb stopped him. "Dear wolf, please wait for some more time. The grass is yet to get digest. If you eat me now, you will see a lot of grass in my stomach. Let me dance and it will be digested easily." Wolf agreed. The little lamb danced crazily and carefully. There was a ringing bell tied to its neck. The shepherd was searching for the little lamb, heard the bell sound. He saw the wolf and the lamb. He ran towards wolf with a stick. Seeing the shepherd with a stick, the wolf got scared and ran away, and the lamb was saved. Okay, next. इसके और में क्वेश्चन है. Given below are sets of instructions for making different things. Different thing, read the instruction and then write the process of making the thing in the form of paragraph. ये कुछ instructions given है, इन्हें आपको paragraph की form में लिखना है. How to make banana shake. Take 6 bananas, crush them into pulp, boil half liter of milk, add pulp and banana and sugar. Add banana pulp and sugar, stir for 2 minutes, remove from heat, cool it for few minutes, mix well in a blender. So to make delicious banana shake, begin by crushing 6 bananas. In a pot, combine this banana pulp with half liter of milk and an appropriate amount of sugar. Stir the mixture for 2 minutes over heat and remove it and let it cool for few minutes. Once cooled, blend it thoroughly using a blender. The flavorful banana shake is ready. Okay, now next is literature section.
फर्स्ट इज आंसर एनी टू इन वन और टू सेंटेंसेस. वेयर वॉज मिस्टर गेस्लर्स शॉप लोकेटेड. मिस्टर गेस्लर की जो शू शॉप थी वो कहाँ पर लोकेटेड थे. इट वॉज लोकेटेड इन लंडन. नेक्स्ट इज हु हैव टी पार्टी अंडर द ट्रीज. ट्रीज के कुछ यूजेस बताएं आपको पोएम में. तो टी पार्टी कौन करते हैं अंडर द ट्री. ये करते हैं एडल्ट्स. दी एडल्ट्स enjoy having tea parties under the shade of the trees. What happen when the wind blows. क्या होता है जब विंड ब्लो करती है. जो लीव्स और ब्रांचेस हैं वो टू फ्रो आगे पीछे मूव करती है जिससे हमें कूल ब्रीज मिलती है. सो व्हेन विंड ब्लो थ्रू द ट्री द लीव्स एंड ब्रांचेस मूव to and fro giving cool breeze. Okay, next. Now answer any 4 in 30 words. 2 markers हैं ये. What did Nishad gave Mr. Nath and why. निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया. उसने उसे एक चॉकलेट दी थी. A bar of chocolate. So Nishad gave a bar of chocolate to Mr. Nath. और एंड वाई क्यों उसको दी थी. क्योंकि उसको लगा कि मिस्टर नाथ जो है ही वॉज स्टार्विंग. उसकी फिजिक को देखकर क्योंकि वो बहुत थिन था तो उसको लगा कि उसे शायद वो स्टार्व कर रहा है. एंड ही बिकॉज ही थॉट दैट मिस्टर नाथ दैट ही वॉज स्टार्विंग. वाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे. निषाद और माया की छुट्टी क्यों हो गई थी स्कूल की. क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो स्ट्रीट्स थी वो पानी से बिल्कुल भर गई थी. ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था. सो बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेवीली एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड विद वाटर and the traffic was blocked. So Maya and Nishad got a holiday. Next is what do you think the talking fan was demanding. Talking fan क्या demand कर रहा था. The talking fan was demanding oiling its whirling motor. Next is which uncle of Golu had red eyes. गोलू के किस अंकल की रेड आइज थी, लाल आंखें थी. सो रेड आइज थी हिप्पोपोटामस की. हिप्पोपोटामस. नेक्स्ट इज व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर. गोलू रिवर पर क्यों गया था. क्रोकोडाइल को देखने के लिए और ये पता करने के लिए कि वो डिनर में क्या खाता है. सो गोलू वेंट टू द रिवर टू सी a crocodile and to find out what it had for dinner. Okay, now answer any one in 100 to 150 words. ये 5 mark के questions हैं. First is name 2 things the elephant can do with his trunk that he could not do before. एलिफेंट की जैसे गोलू की ट्रंक जो है वो बहुत बड़ी हो गई थी. उसके बाद से एलिफेंट की जो नोज़ थी बेसिकली वो ट्रंक में कन्वर्ट हुई है. तो कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जो वो अपनी नोज़ से पहले नहीं कर सकते थे अब कर सकते हैं. सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को वो प्लग कर सकते हैं. ग्रास को प्लग कर सकते हैं खाने के लिए. स्टफ़ कर सकते हैं उसको अपने माउथ में. सो फर्स्ट इज एन एलिफेंट कैन प्लग ग्रास. अ बंडल ऑफ ग्रास. बंडल ऑफ ग्रास को प्लग कर सकते हैं. फ्रूट को किसी को प्लग कर सकते हैं. अपने फूड को पिकअप कर सकते हैं ट्रंक की हेल्प से. कैन प्लग अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास एंड स्टफ इट इनटू इट्स माउथ. देन ट्रंक की हेल्प से जो पहले वो नोज़ से नहीं कर सकते थे वो मड को स्कूप अप कर सकते हैं. उसको अपनी बॉडी के ऊपर रब कर सकते हैं. या फिर आपने जैसे जनरली देखा होगा वो
अपने ट्रंक की हेल्प से वाटर को पोर करते हैं अपने ऊपर, अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए पानी भरते हैं अपनी ट्रंक में, फिर अपने ऊपर डाल लेते हैं. सो एन एलिफेंट कैन पोर वाटर ऑन हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ ट्रंक. ओके, अपने फूड को भी लिफ्ट कर सकते हैं, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं ट्रंक से. लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट, जो पहले वो अपनी नोज से नहीं कर सकते थे. ओके, इसके और में क्वेश्चन है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रुक. माया को ऐसा क्यों लगता था मिस्टर नाथ एक क्रुक. एंड व्हाट डज शी से द संडे विजिटर इज. उसने क्या कहा, संडे विजिटर कौन है. तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से माया सोचती थी मिस्टर नाथ एक क्रुक है. सबसे पहले तो ही डजंट टॉक टू एनीवन. मिस्टर नाथ किसी से बात नहीं करता है. टॉक टू एनीवन. ही हैज़ नो फ्रेंड्स. कोई दोस्त मिस्टर नाथ के नहीं थे. एंड कोई काम भी वो नहीं करता था, तो उसको लगता था पैसे कहाँ से आए उसके पास. ही डजंट वर्क. देन उसके फेस के ऊपर स्कार्स थे, बहुत सारे स्कार थे, निशान थे, जो उसको लगता था कि शायद वो ही हैज़ स्कार्स ऑन हिज फेस. कहीं पर किसी घर में वो होगा, जलने के मार्क थे बेसिकली, जिसको आग लगा के वो भाग गया होगा, क्योंकि पुलिस भारती बहुत सारी स्टोरीज माया ने बनाई हुई थी. ही हैज़ स्कार्स ऑन हिज फेस. और ना कोई लेटर्स उसको आते थे. सिर्फ एक ही विजिटर था उसका जो हर संडे आता था, और वो हमेशा जब भी खाना लेके आता था उसके लिए, जो एक फूड डिलीवरी बॉय था रमेश, वो हमेशा उसको कैश में पे करता था और अच्छे से टिप देता था. सो नंबर 5, ही पेज फॉर हिज मील्स इन कैश. तो उसको लगता था जो संडे विजिटर है उसका, वो उसको कैश दे के जाता होगा, जो लूट है उसका एक शेयर देकर जाता होगा कैश में, और वो काम नहीं करता तो उसके पास पैसे कहाँ से आए इतने अच्छे से टिप देने के लिए. नंबर 6, ही टिप्स वेरी वेल. ओके, और संडे विजिटर उसको लगता था दैट संडे विजिटर इज मिस्टर नाथ्स पार्टनर इन क्राइम. उसका अकम्प्लिस है, पार्टनर है क्राइम में, और संडे को आके वो जो भी लूट का सामान था उसको शेयर करते हैं दोनों आपस में. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 7th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.